Good morning, all of you. Welcome to KGP Online Classes and welcome to Environmental Studies class. In today's class, we are going to learn about safety rules. Now, when the first thing is that what do we understand by safety? कि हमें सेफ्टी से क्या समझ में आता है, हम इस टर्म सेफ्टी से क्या समझते हैं. So let's try to look into our lives. Whenever you people go out somewhere to play with your friends, even to school, and even if you are staying at home and playing, what does your mother tell you? Your mothers tell you to be careful, right? आपकी मम्मा आपसे क्या कहती हैं कि बेटा be careful and be safe, बच के रहना. क्यों कहती हैं वो? Why does she tell this? क्यों हमारी मम्मा हमें ऐसे कहती हैं कि हमें बच के रहना है, हमें सेफ रहना है? Because there is sometimes a little danger. कुछ एक जगह डेंजर होता है एंड हमें उस डेंजर से अपने आप को बचाना चाहिए. एंड डेंजर से बचने के लिए होते हैं कुछ रूल्स एंड उन रूल्स को हमें सीखना है, राइट? So let's move forward. So here it is here. Safety means to stay safe from danger, right? Danger से हमें safe रहना है, so that is safety. And safety हमें कहाँ पे हमें बच के रहना चाहिए. Safety on road. जब भी हम रोड पे जा रहे हैं, we should be careful. We should be safe. Safety at home. Even if we are at home, we have to be careful for things. We are going to read all of these points in depth in the video. Safety while playing. It is really important to be careful while we are playing. Safety while swimming and body safety. So these are all the places and things that where we should be careful, we should be protective and यहाँ पे danger हो सकता है, right? So आज हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे. Now again, yes, next. Now again, yes, the question is like how to be safe. कि हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम कैसे बच के रह सकते हैं. By rules. We can be safe by following rules. So कुछ एक rules हम लोगों को पता होने चाहिए and वही rules follow करके हम safe रह सकते हैं. So in this video we are going to discuss about safety on road. Yes. Okay. So the first rule is always walk on the footpath. Whenever you are going or walking on the road, we should walk on the footpath. As you can see in this picture, this is the main road, the one in black, that is black in color, and the area, the space that is pink in color, it is called as footpath, where a father is standing with his child, a man is standing with a little boy. This particular area is called as फुटपाथ. सो जब भी हम लोग रोड पे चल रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फुटपाथ पे चलें. फाइन. और अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको रोड के किस साइड चलना चाहिए? ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. ठीक है, इन सारी बातों को याद रखना एंड ट्राई टू डू वन थिंग. व्हेन आई एम गोइंग टू when I'm going to read any of the sentence, you repeat after me. Second is always walk on the left side of the road. Yes, अगर फुटपाथ नहीं है रोड के तो हमें रोड के लेफ्ट साइड चलना है. Always cross the road at the zebra crossing. Now what happens sometimes, traffic signal है, बहुत सारी cars आ गई हैं, जा रही हैं, and I have seen so many times कि बच्चे, not even the kids, even the people who are really adults, they also do this mistake that they just cross the road anywhere, from anywhere. So please don't do that. This is wrong. हमें ये नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है. जब भी कहीं पे भी जीब्रा क्रॉसिंग होती है, वहीं पे आप रोड को क्रॉस करिए. लाइक इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जैसे जीब्रा क्रॉसिंग है एंड दिस, व्हाट इज जीब्रा क्रॉसिंग?
जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं रोड पे पेंटेड, उन्हें हम कहते हैं जीब्रा क्रॉसिंग्स। और जीब्रा क्रॉसिंग्स क्यों कहते हैं? बिकॉज आपने जेब्रा देखा है, जीब्रा देखा है, राइट? उस पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है ना जीब्रा पे, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जीब्रा क्रॉसिंग। और हमें जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, वी शुड क्रॉस इट ऑन दी जीब्रा क्रॉसिंग. Now, never play on the road. This is also really important. You should never play on the road. I have seen this many times, especially during Makar Sankranti. I have seen so many kids running after, running to catch the kites on the road. They just don't see that whether any vehicle is coming. They do not be really careful. So please do not do that, right? आपको अगर हमें फेस्टिवल्स बनाने हैं तो हमें अच्छे से फेस्टिवल्स मनाने चाहिए. ये कि हमें काइट्स के पीछे दौड़ना, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. सो एंड हमें कोई भी किसी भी टाइप का गेम नहीं खेलना चाहिए रोड्स पे. नाउ द फिफ्थ वन इज डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल बोर्डिंग अ बस. दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. व्हेन वी आर बोर्डिंग अ बस, जब हम किसी बस में चढ़ रहे हैं तो हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए, हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. नाउ डू नॉट टेक योर हैंड्स और आर्म्स आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. व्हेन द बस इज मूविंग, do not keep your hands out of the window like this, or do not even sit like this. Because when we sit like this, most of the part of our arm is outside, hanging outside the window of the bus, which is really bad because it can harm you if other vehicle touches with your arm. So do not do that. Now the seventh rule is follow the traffic rules. You should follow the traffic rules, and to understand traffic rules we will also read about them. Okay, so to follow traffic rules we must know about traffic lights. Okay, this is really important, so listen carefully. The red light, what does red light suggest? Red light suggests to means stop. It means to stop. Okay, just think about it. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं कहीं पे भी घूमने, एंड ट्रैफिक लाइट बीच में आती है, सिग्नल आता है, तो जब रेड लाइट हो जाती है, सो व्हाट डज योर फादर और मदर डू? वो क्या करते हैं मम्मी पापा? अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आपको रुकना है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक, दूसरी तरफ से व्हीकल्स जाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दी येलो लाइट. येलो लाइट का मतलब होता है टू स्लो डाउन, एंड कई लोग इसको थोड़ा गलत भी समझ लेते हैं. येलो लाइट का मतलब ये होता है कि आपको स्लो डाउन करना है, उससे पहले स्लो डाउन करना है, क्योंकि जल्द ही सिग्नल रेड हो जाएगा. ठीक है, कि जो स्टॉप लाइन होती है ना, उस पे आपको या तो आपको स्लो ड्राइव करना है, क्योंकि जल्दी से सिग्नल रेड हो जाएगा एंड दूसरी तरफ से ट्रैफिक आने लगेगा. बट बाय चांस अगर आप उससे आगे निकल गए हैं, स्टॉप लाइन से अगर आप आगे निकल गए हैं, फिर भी आपको चलते रहना है एंड आगे निकल जाना है, बट यू हैव टू ड्राइव इट स्लोली. ओके, सो इसका मतलब ये होता है. एंड देन ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट का मतलब होता है टू गो. जैसे आप जा रहे हैं वैसे चलते रहिए, और रेड लाइट पहले से ही है तो रुक जाना है, एंड जब रेड लाइट से ग्रीन लाइट होती है उसका मतलब अब आप जाइए. नाउ इट इज सेफ टू मूव, क्योंकि दूसरी और कहीं से कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अदर रोड साइंस. It is really important, and it is also important because whenever you are going, so you should know that कि कौन सा अगर सिग्नल लगा है तो उसका मतलब क्या है. और मैं अपनी क्लास में बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि यू शुड नो अबाउट दिस. अगर आपके मम्मी पापा ऐसे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, सो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टीच देम कि नो ममा, नो पापा, दैट्स रॉन्ग, डोंट डू दैट. राइट, जहां पे होता है स्टॉप का साइन, दिस इज द स्टॉप साइन, कि रेड कलर के बोर्ड पे बड़ा बड़ा स्टॉप लिखा होता है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप.
cannot move forward for a time. Now this is no pedestrian. Okay, ये एक there is a man is drawn here, a human being is drawn here, and this red line, this cross is drawn over it. Yes, इसका मतलब क्या होता है? No pedestrian. इसका मतलब कि यहाँ पे कोई पैदल नहीं चल सकता है, यहाँ पे आप वॉक करके पैदल नहीं जा सकते हैं, ये अलाउड नहीं है. Now this sign. In this sign a bicycle is drawn and a red cross is drawn over it. इसका मतलब क्या है? No bicycles are allowed here. यहाँ पे bicycles allowed नहीं है. Now look here, this yellow sign. In this what is shown? That a man is working. A man is digging something. इसका क्या मतलब होता है? Road work ahead. कि सामने कुछ काम चल रहा है, कुछ भी काम हो सकता है. और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कोई व्हीकल लेके जा रहे होते हैं, साइकिल लेके जा रहे होते हैं, और हम ध्यान देते नहीं है और हम जा रहे हैं और हमारी साइकिल किसी भी खड्डे में गिर सकती है. सो इट इज रियली डेंजरस. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस साइन. नाउ दिस इज सिग्नल अहेड. This is something that we have already discussed in the previous slide. Now this is left turn ahead. कि अगर हमें आपको टर्न लेना है तो वो लेफ्ट टर्न ही आप ले सकते हैं. लेफ्ट टर्न है यहाँ पे, वो आपको लेना है. Now some more road signs. Now these are road signs. These are also really important and important for kids especially. This is रेलवे क्रॉसिंग. रेलवे क्रॉसिंग आपको पता ही है, जहाँ से रेल निकलती है, ट्रेन्स निकलती हैं, उसे हम रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं. लाइक रोड है बीच में और उससे ट्रेन निकल गई है, तो उसे हम रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं. एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू नॉट जस्ट गो फ्रॉम एनीवेयर. लाइक ट्रैक्स के ऊपर से निकल के हमें कभी भी इस तरह नहीं जाना चाहिए, खासतौर से जब ट्रेन आने वाली हो. इट कैन बी रियली डेंजरस. ओके, सो बी माइंडफुल ऑफ इट टू. नाउ दिस इज स्कूल नियर बाय. स्कूल नियर बाय क्यों ये है? बिकॉज इन दिस 2 children कैन बी सीन, है ना, 2 बच्चे दिख रहे हैं इसमें, एंड द किड्स आर वॉकिंग. सो इस साइन का मतलब क्या होता है? दैट देयर इज अ स्कूल नियर बाय, पास में कोई स्कूल है. नाउ दिस साइन. This is the sign in which a human being is walking on the zebra crossing. Okay, तो ये zebra crossing का ही sign है. यहाँ पे lines में नहीं हुई ना, तो this is showing that यहाँ पे zebra crossing है, यहाँ पे आप cross कर सकते हैं zebra crossing पे. Okay बेटा, so in this chapter we studied about road safety and safety rules that we must follow while we are on road. Okay, we have studied about this, and now in our previous videos we will study more about safety and where we have to follow safety rules. Thank you.